Hello guys, this is Krishna. Welcome back to my channel. Today we are going to start with urbanization. What we are going to see in this particular video is all about urbanization. Here we are going to see the reasons for urbanization, issues arising through urbanizations, and we are also going to witness some solutions to urbanization. Right? So without taking your much time, let's begin with this beautiful period. Urbanization. As we know that it is a process of becoming urban, right? Moving to cities, changing from agriculture to other pursuits common to cities such as trades, manufacturing, industries, and management, and also corresponding changes of behavior patterns. It is a process of expansion in the entire system of interrelationships by which population maintains itself इन अ हैबिटेट, राइट. सो अर्बनाइजेशन को हिंदी में शहरीकरण बोलते हैं. ठीक है, शहरीकरण मतलब शहर का एक एक्सपेंशन होना किस भी रूप में. जैसे कि लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं तो लोग सिटीज़ की ओर मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब सिटीज़ की जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीमेंट दिखेगा. एक कुछ पर्पज़ होता है, परस्यूट होता है. जैसे कि लोग ट्रेड के लिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने के लिए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं, मैनेजमेंट सेक्टर में काम करने के लिए जाते हैं, राइट. और ये जितने भी सेक्टर्स हैं, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलता है कि अर्बन सिटीज़ जो हैं, अर्बन सेक्टर्स जो हैं, अर्बन एरियाज़ जो हैं, उधर ही ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हुई हैं. ठीक है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं इन पर्पजेज़ के लिए. तो इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही अर्बनाइजेशन कहलाता है. अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, देन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज एक्चुअली सीन एज अ सोशियो कल्चरल प्रोसेस, economic process, and also a geographical process. What we will see in a socio-cultural phenomena or a socio-cultural process is like a melting pot of the people with a diverse ethnic, linguistic, and religious backgrounds. As an economic process, the city is a focal point of productive activities. Right, it exists and grows on the strength of the economic activities existing within self. Under the geographical process, as we all know, that it deals with the migration or the change of the location or the residence of the people and involves the movement of people from one place to another place. So all these things in Indian context actually becomes very important when we discuss about urbanization, right? So urbanization in India was mainly a post independence phenomena. पहले तो हम लोग रूरल ही वो कहलाते थे, एग्रेरियन सिटी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, लोग थे, राइट. सो ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ द मिक्स्ड सिस्टम ऑफ इकोनॉमी बाय द कंट्री which gives rise the development of private sector. So urbanization has been taking place at an increasingly fast rate in India, right. So population residing in urban areas in India according to 1901 census was 11.4%, but this count increased to 28.53% in 2001 census and also has crossed 30% as per 2011 census, which is standing at 31.16% to the exact. So all these things, all these facts are actually important for covering the urbanization topic. And so without taking your much time, let's go with these regions for urbanization. So here we are going to see the regions. What are the regions which are actually responsible for the urbanization? Like we have discussed about the employment, I mean in economic process we discussed about the productive activities, right. So urbanization में क्या होता है, रीजन देखते हैं, हम रीजन ही देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है. क्योंकि आपको पता है रूरल से लोग शहर में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हाई होती हैं. ठीक है, वहाँ पे लोग जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, इस पर्पज़ से लोग वहाँ पे माइग्रेट करते हैं. दूसरा है हेल्थ एंड एजुकेशन. हेल्थ एंड एजुकेशन लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, एक पुश एंड पुल फैक्टर होता है इकोनॉमी में. ठीक है, अगर आप उसे पढ़े होंगे तो समझ ही गए होंगे, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप समझिए, जहाँ पे हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर अच्छा होगा तो आप वहीं तो जाना चाहेंगे ना. ठीक है, तो इस तरह से एक तो ये रीजन हो जाता है अर्बनाइजेशन का. दूसरा, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक, वो भी इम्प्रूव होती है. रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये देखने को मिलता है अर्बनाइजेशन के कॉज में. कमर्शलाइजेशन देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है अर्बनाइजेशन का. ठीक है,
अभी हम देखते हैं इश्यूज़ अराइजिंग थ्रू अर्बनाइजेशन। कौन से इश्यूज़ हैं जो अर्बनाइजेशन के थ्रू जो है अराइज होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं जब अर्बनाइजेशन होने लगेगा, लोग वहाँ पे जाने लगेंगे, भीड़ भाड़ बढ़ने लगेगी और वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब इस तरह से क्या होगा, इन्वायरमेंटल डैमेजेस भी देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल डैमेजेस की बात करें तो जैसे कि वहाँ पे देखने को मिलता है कि पहले तो इस तरह से लोग हो जाएंगे तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन से पुअर एयर जो है मिलेगी, वाटर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट उतने अच्छे से नहीं हो सकता अगर पॉपुलेशन भीड़ ज़्यादा है, ठीक है। और अर्बनाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है लगातार, ठीक। तो इस तरह से जैसे कि हम देखेंगे एनर्जी कंजप्शन में वेस्ट शॉर्टेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं आजकल देखने को मिलता है, कहीं भी जा रहे हैं तो फ़ैन ऑन करके चले जा रहे हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल और ये सारी चीज़ें जो है वो कंजप्शन में देखने को मिलेगा कि एनर्जी कंजप्शन एंड वेस्टेजेस भी देखने को मिल सकते हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ की बात करें हम। फिज़िकल की बात करें तो फिज़िकल में बेसिकली हम बात करेंगे तो जो ग्रोथ ऑफ सिटीज़ हैं, जैसे स्लम्स हैं, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है या होमलेसनेस है, ठीक है, सब अर्बनाइजेशन वाला जो एरिया है ये फिज़िकल कैटेगरीज़ में आ जाएगा। ये इसके द्वारा जो एक्चुअली अर्बनाइजेशन जो है अराइज हो रहा है उसके इश्यूज़ में फिज़िकल भी आ जाएगा। सोशल की बात करें तो सोशल में जैसे फैमिली है, क्राइम्स देखने को बहुत मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। पॉवर्टी तो आप ऑब्वियस सी बात है, चाहे रूरल हो अर्बन हो, हर जगह देखने को मिलेगी। प्रोस्टिट्यूशन एक मेजर मुद्दा बन जाता है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और गैम्बलिंग होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे बिगर्स मैन जो होते हैं या बिगरी जिसे कहते हैं ना, वो वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी लोगों को इनकम के लिए। और कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलेंगे आपस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सोशल एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो जब इस तरह का अर्बनाइजेशन हो जाएगा तो लोग देखने को मिलता है अल्कोहलिज्म बढ़ जाता है। लोग मतलब शराब, दारू, ड्रिंक और ऐसे करके बहुत सारे मतलब ड्रग्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। स्ट्रेसेस भी लोगों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो जाता है अर्बनाइजेशन का। इकोनॉमिकल की बात करें तो इकोनॉमिकल में मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हम देखने को यहाँ पे मिलेगा। और अर्बनाइजेशन के सॉल्यूशंस की बात करें जो कि मुझे लगता है पूरे अर्बनाइजेशन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मतलब ये हो जाता है एक्चुअली सॉल्यूशन देखना कि एक्चुअली उसके क्या निष्कर्ष हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम, तो आपको ये समझना होगा सबसे पहले रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को कम करना पड़ेगा। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन किस तरह से कम होगा, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिससे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, ठीक है, पर पर्सन कैपिटा इनकम बढ़ती हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट हो गई, तो ये सारी चीज़ों में अगर अच्छा मतलब रूरल में भी ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो लोग क्यों ही जाएंगे अर्बन, ठीक है। तो इस तरह से रूरल को भी ध्यान में दे करके ये काम करें, इससे कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कम हो, जिससे कि अर्बनाइजेशन का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास निकल कर आए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज़। सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज़ होनी चाहिए, ठीक। तीसरा, क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स। पहले तो जॉब्स अगर ज़्यादा होंगे तो हर जगह जब जॉब्स होंगे तो भीड़ कम रहेगी। आपके जिस ज़िले में जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी तो लोग उस ज़िले को वहीं पे रहना चाहेंगे, कोई दिल्ली बम्बई नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आपके ज़िले में अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो। इससे उस शहर का अर्बनाइजेशन नहीं होगा जहाँ पे उस व्यक्ति का एक्चुअली फाइनल डेस्टिनेशन होता है जाने के लिए फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, राइट। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात भी हो सकती है जिससे कि अर्बनाइजेशन रिड्यूस हो। और यहीं पे स्ट्रेंथन द रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ फिनेंशियल एंड पॉलिटिकली, ठीक है, राजनीतिक और क्या है वित्तीय रूप से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं हमारी, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह से क्या होगा, ये जो अर्बनाइजेशन का सलूशन है वो हमारे पास निकल कर आएगा, ठीक है गाइज। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।